Good evening students. So let us begin with our chapter proceeding continuation करते हैं matter in our surrounding. So in this chapter previously we have studied about the characteristics of particles of matter, define matter, anything that occupies space and is known as mass and volume is known as matter. Revise कर लेते for example, is chair a matter? दिमाग में क्या आया? Yes or no? Yes, chair is a matter. Is table a matter? Yes, table is a matter. Is love a matter? No, love is not a matter. Is hate a matter? No, hate is also not a matter. So I think so the topic is clear to you. Anything that occupies space and has certain mass or volume, then only in chemistry terms or in scientific terms you can say that is a matter. Then we have seen the characteristics of particles of matter. That is, first, particles of matters are very small. Second, particles of matters are continuously moving or constantly moving. Third, particles of matters have space between them. Fourth, particles of matters attract each other. Okay, then we have studied, can matter change its state? Yes, matter can change its state, that we have seen. Okay, sorry, before that we have studied the solids, the states of matter. There were 3 states of matter: solid, liquid and gases. We have studied the properties of solid, liquid and gases. Then we have seen the conversions, how to convert the Kelvin into degree Celsius and how to convert degree Celsius to Kelvin. I hope that is clear to you all, because that is a fixed question always asked during your exam times. Convert Kelvin into Celsius or Celsius into Kelvin. Okay, so let us move forward. Next, that is, we will revise again क्योंकि there was a space gap between the class of chemistry, so I will make you revise this. That is, can matter change its state? Yes, we have seen matter can change its state because of 2 things, that is its temperature and your pressure, by increasing or decreasing the temperature or by increasing or decreasing the pressure. First we have gone through effect of change of temperature. That is, we have seen solid to liquid change, which is known as melting; liquid to gas change, which is known as boiling or vaporization; gas to liquid change, which is known as condensation; liquid to solid change, which is known as freezing. Okay, for example, this is melting, you can see over here. solid to liquid by heating you can change. So solid में मैंने example ice लिया है. यहाँ पे ice क्या हो रहा है, melt हो रहा है to form water. heat करे तब melt हो रहा है, या फिर heat नहीं करोगे, room temperature में थोड़ी देर के लिए रख लोगे तो भी वो किस में change हो जाता है, वो water में change हो जाता है. तो the process of conversion of solid into liquid by heating is known as melting or fusion. और क्या बोलते हैं, फ्यूजन. सो इफ आई आस्क टू डिफाइन फ्यूजन, सो दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन. ओके, नेक्स्ट, बॉइलिंग और वेपराइजेशन. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, बॉयल होते हुए वेपराइजेशन, वेपर बन रहा है, लिक्विड बॉयल हो रहा है और क्या बना रहा है आपका, वेपर्स बना रहा है. यू कैन ईजिली सी ओवर हियर. नेक्स्ट वॉज कंडेंसेशन. अच्छा, बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या था, किसी को याद है कि बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या है या वेपराइजेशन का? रिमेंबर करो, व्हाट वाज द डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ देख सकते हो पिक्चर में, ऑफ लिक्विड टू वेपर और यू कैन से लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग इज नोन एज वेपराइजेशन. नेक्स्ट यू हैव सीन कंडेंसेशन. व्हाट वाज कंडेंसेशन? देख के पता चल रहा है, वाटर वेपर को क्या करेंगे, कूल करेंगे. ठीक है, सो वो किस में कन्वर्ट होगा आपके वाटर वेपर को, जब आप कूल करोगे, वाटर वेपर को कूल करोगे तो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, इसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ये वाटर है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर को कूल करोगे तो वाटर लिक्विड में कंडेंस होके वो हो रहा है बाय कूलिंग द टेम्परेचर, दैट इज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. द चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, the change of gas to liquid by cooling is known as condensation. So water vapor is converted to water at liquid. Okay, next, freezing. What is freezing? So the change of liquid to solid by cooling is known as your freezing. So that is water. Best example, liquid किस में change हो रहा है, ice में. कूल कर रहे हैं ना, उसको freeze कर रहे हैं by decreasing the temperature. ठीक है, that is known as freezing. Okay, फ्रीजिंग की जगह एक और वर्ड था, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. राइट, दैट वाज सॉलिडिफिकेशन. फ्रीजिंग की जगह सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना. सो आई होप दिस थिंग्स इज अगेन क्लियर टू यू. रिवाइज हो गया होगा आपका.
सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. मेल्टिंग पॉइंट भी हमने देखा था, आई थिंक सो. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है. सो द टेम्परेचर, रिमेंबर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जब तक उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते. आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? किसी को याद है? बताया था मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? 100 डिग्री सेल्सियस. वैसे ही मैंने आयरन का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है. सो इससे एक और कंक्लूजन हमें पता चल रहा था, मोर द मेल्टिंग पॉइंट मोर इज़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. सो जितना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी. ये भी हमने स्टडी किया था. बॉइलिंग पॉइंट भी हमने स्टडी किया था. व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called its boiling point. And boiling is a bulk phenomena. bulk मतलब इंटीरियर में bulk phenomena, okay? ऊपर ऊपर नहीं, जब तक वो अच्छे से लिक्विड्स के पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे, वाटर बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा at its atmospheric pressure. That is known as boiling point. Next, have you ever observed, ये चीज़ क्वेश्चन आती है, वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्वेश्चन ये आता है कि वाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. क्या कभी सोचा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग के पॉइंट के टाइम पे? थोड़ा सोचो. विल यू, किसी के दिमाग में कुछ आया? नहीं आया तो कुछ नहीं, हम देखेंगे. दैट इज़, this is because of the supply. This is why is because this is because the heat supplied to the substance is used up. हीट जो आप सब्सटेंस को सप्लाई करते हो बॉइलिंग या मेल्टिंग के टाइम पे, वो एब्जॉर्ब हो जाती है. कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है? जो ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ये जो सॉलिड से लिक्विड में या सॉलिड से गैस में जो चेंज हो रहा है, ये जो आप चेंजेस देख सकते हो, तो ये चेंजेस होने के लिए ये जो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, वो किस में का लिक्विड में कर रहा है. तो मतलब लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन देखो, अभी आप यहाँ पे पार्टिकल्स में देख ही सकते हो कि उनके बीच में देखो अट्रैक्शन बहुत कम है, और गैसेस में तो है ही नहीं. तो ये जो हीट एनर्जी आप बॉइलिंग करते वक्त या फिर मेल्टिंग करते वक्त प्रोवाइड करते हो, तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर देते हैं, ठीक है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उससे निग्लेक्ट हो जाते हैं. तो उसकी वजह से आप कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं देखते हो ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, याद रखना. सो दिस इज बिकॉज द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस is absorbed in the overcoming the intermolecular forces, and therefore it does not show up rise in temperature. Thus the heat supplied during melting and boiling point remains hidden from the thermometer. थर्मोमीटर में हिडन रहता है वो, ठीक है. समझ में आया कहाँ जाता है वो हीट एनर्जी? आप तो हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना. तो बट टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट रहता है. एक बार वो आ गया तो उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम तक. क्यों? क्योंकि उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो उस हीट एनर्जी को क्या कर देते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो उसकी वजह से आप टेम्परेचर थर्मोमीटर में कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं देखते हो, ठीक है. दैट इज नोन एज लेटेंट हीट. अब उस हीट को क्या बोलते हैं हम? उस हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. लेटेंट इटसेल्फ मीन्स हिडन. लेटेंट को क्या बोला जाता है? हिडन. लेटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ. लेटेंट को क्या बोलते हैं? हिडन बोलते हैं, ठीक है. So the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat, and latent heat does not rise or increase the temperature as I have discussed. So the word latent means hidden. It is called latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state. मैं ये स्टेट चेंज के वक्त ही बात कर रही हूँ, हाँ, मैं ऐसे जनरली किसी लिक्विड की बात नहीं कर रही हूँ. जब सॉलिड से लिक्विड में आप चेंज कर रहे हो एंड उसका टेम्परेचर या मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स, उसके जो पार्टिकल्स है, उसको अपना फोर्स क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है. तो वो जो हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है. तो उसकी वजह से कोई भी चेंज आप नहीं देखते हो. सो रिमेंबर दिस, ओके.
सो लेटेंट हीट क्या करता है, वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर, लेटेंट मतलब हीटन होता है, तो उसकी वजह से राइजिंग टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप। सो वेयर दिस लेटेंट हीट इज सप्लाई, कहाँ यूज हो जाता है? इज यूज्ड अप by overcoming the forces of attraction between the particles of substance during the change of state. ठीक है, so you should know। अब latent heat दो टाइप के हैं state की वजह से, that is latent heat of fusion and that is latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now what is latent heat of fusion? So latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point। मतलब जब मुझे solid से liquid का change करना है, ये जो solid है उससे मुझे liquid का change करना है, this change I have to brought, so that time the heat energy is known as latent heat of fusion। क्योंकि आपको पता है ना, process of conversion of solid to liquid is known as fusion, so the hidden heat which is provided during this change is known as latent heat of fusion। okay, same way latent heat of vaporization। what is latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at its atmospheric pressure at its boiling point। so that is the amount of heat energy required to convert this liquid to gas। जो hidden heat इसमें change हो रहा है, energy आप provide कर रहे हो liquid से gas में, so उसको हम क्या बोलते हैं? latent heat of vaporization। so I hope latent heat is clear to you। so यहाँ पे आप देख सकते हो, this is latent heat of fusion, this is latent heat of vaporization। मतलब क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस 800 कैलोरीज रिमूव करना है और ऐड करना है। कौन से डिग्री सेल्सियस में? दोनों किस में हो रहा है? दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में ही चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। उसमें कुछ भी उसका जो टेम्परेचर है, ना ही वो बढ़ रहा है ना ही टेम्परेचर कम हो रहा है इस प्रोसेस के टाइम पे, पूरे प्रोसेस के टाइम पे। वाई? बिकॉज वो कहाँ जाता है, वो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, बट नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज वो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है। समझ में आया? इसलिए वो टेम्परेचर ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में और क्लियर हो जाएगा इसके कि वाई इज आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आइस क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करेंगे? ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देंगे ना, फ्यूजन करेंगे, उसके अंदर मास ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कूलिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा, सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में क्या है? एनर्जी जो स्पेस है वो कम है, सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस कम है, तो उसकी वजह से क्या करेगा? उसका मास ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? हीट एनर्जी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स कम है, तो ऑब्वियसली उसका मास भी क्या है? कम है, तो वो हीट एनर्जी क्या करेगा? कम प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसी के बेसिस पे, वेपराइजेशन के बेसिस पे, वाई डज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर बर्निंग सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। ये ट्राई नहीं करना घर पे, ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखो कि steam causes more severe burns than boiling water at 100 degree Celsius. What is the reason? Because steam at 100 degree Celsius has more heat in the form of latent heat than boiling water. स्टीम है ना, बॉईल किया होगा पानी को, तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, मतलब उसने हीट आपने प्रोवाइड किया, तो उसने बहुत सारी हीट, हिडन हीट अपने अंदर छुपा के रखी है, क्योंकि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो उसकी वजह से स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्निंग एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, क्लियर है आई थिंक सो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? द प्रोसेस, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, the process of conversion of solid state directly into gaseous state without coming into liquid state। मतलब सॉलिड से आपका सॉलिड से कन्वर्जन डायरेक्टली गैशियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है, और वाइस वर्सा गैशियस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, आयोडीन सब्लिमेशन, कैम्पर, नैप्थलीन, एंथ्रेसीन एंड ड्राई आइस। ये आपके टेक्स्ट बुक में है फिगर। ये अमोनियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड को फनल से ढका है, कॉटन प्लग किया है, तो जब उसको हीट कर रही हो तो वो डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये वेपर्स है, वो क्या हो रहा है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट। ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा है हम लोग ने, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द मेजर ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम
ठीक है। तो सॉलिड को गैस को क्या किया है, प्रेशर अप्लाई किया और उसको किस में कन्वर्ट किया है, योर सॉलिड। सो दिस इज योर ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी डायरेक्ट सॉलिड होता है, तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर आप देख सकते हो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ड्राई आइस कहाँ यूज़ किया जाता है, ये आपका आइसक्रीम पार्लर्स में यूज़ किया जाता है। जो आप देखते हो ना, सॉलिड है, धुआं धुआं आ रहा है, वेपर्स जैसा आता है, यहाँ पे तो नहीं होगा, आउटसाइड इंडर स्टेट में पॉसिबल है, ये यहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता है कहीं कहीं। सो वो क्या होता है, कूलिंग के लिए यूज़ होता है सेम, एंड इट इज़ नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड रहता है और फिर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल घर पे है आपका सब्लिमेशन का नैप्थेलिन बॉल्स, कपूर की गोलियां बोलते हैं ना, मम्मी कपड़े में रखते हैं। तो अगर आप उसको आज रखा है मम्मी ने अगर बाई चांस, तो उसको आप सर्टेन 10 to 15 डेज़ के बाद देखो, आपको बॉल्स या तो छोटे हो जाएंगे या तो दिखेंगे ही नहीं, वहाँ पे होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली गैशियस में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, आयोडीन क्रिस्टल्स, देख सकते हो आप यहाँ पे आयोडीन के जो क्रिस्टल्स है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके, that is been converted into your crystals in the form of gaseous form, लिक्विड में भी ना आए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वेपर्स इजीली यहाँ देख सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट योर सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल इज योर कैम्फर। कैम्फर का आप एग्जांपल देख सकते हो। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कैम्फर ओवर हियर, कैम्फर कपूर की गोली जो घर पे पूजाज में यूज़ होती है, दियाज में यूज़ होती है, विच इज़ यूज इन दियाज, दैट इज बिन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैशियस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखा, वी विल सी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। So what is the change of effect of change of pressure? That is, the physical state of matter can be changed by increasing or decreasing the pressure, as you know, compressibility factor. For example, gases can be liquefied by increasing the pressure. Some solids like carbon dioxide gas, carbon dioxide solid, carbon dioxide I have explained you just now. गैस था, गैस को जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज यूजिंग द बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, और सॉरी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, एंड कैन बी चेंज इनटू गैसेस अगेन बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। जैसे आप उसका प्रेशर डिक्रीज करोगे वापस गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। पिस्टन सिलेंडर का यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, तो वो इजीली कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड इतना, जैसे आप उसको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो सॉलिड गैस था, ठीक है, मैंने जैसे मैं एग्जांपल इसी का ले रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, ये मैंने गैस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको थोड़ा कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सो ये एग्जांपल है आपका, इस वे से आप कंप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेस्ट एग्जांपल विच आर यूजिंग कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट ऑफ प्रेशर का आपकी डे टू डे लाइफ में, दैट इज़ योर एलपीजी एंड सीएनजी गैस। गैस था, मीथेन गैस है, मीथेन गैस को कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। So this was the effect of temperature. These are the interconversion of states of matter. Solid to liquid. What is the conversion of solid to liquid known as melting, or you can say fusion. Liquid to solid freezing. Liquid to gas evaporation. ये हम study करेंगे, and gas to liquid to gas evaporation, that we will going to study. Gas to liquid condensation. Liquid to solid solidification of fusion. Solid to gas, again it is known as sublimation, and gas to solid sublimation भी बोल सकते हो, या फिर deposition, new word deposition is also used, that is the same thing. The process of conversion of gas directly into solid is known as deposition. So in the next lecture we are going to study the evaporation part. अब इसके बाद मैं आपको वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली ग्रुप में पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी आप वो सॉल्व करोगे। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।